दूर रखना। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, teacher. Walaikum Assalam, sit down. Thank you, teacher. 10th class students, we are going to conduct internal exam. So in St. Louis school, internal exams are going on the subject biology. Okay, it consists of 4: reading, observation, understanding and speaking. Let us start to internal exams, which consists of 20 marks. Reading, we'll start with the reading. Stand up and read. So, heart is a pear-shaped structure, triangle in outline, wider at the anterior end and narrow at the posterior end. The heart is covered by two-layer membrane. This is called pericardium or pericardial membrane. The space between the two layers is filled with pericardial fluid, which protect the heart from shocks. The heart is divided into 4 parts internally by grooves. The 2 upper chambers are called arterial. Next, continue. The heart is pear-shaped structure, triangle in outline, wider at the anterior end and narrow at the posterior end. The heart is covered by two-layer membrane. This is called pericardial. The space between these two layers is filled with pericardial fluid, which protects the heart from shock. So reading, as your reading is, we have to read loudly and we have to use the punctuation marks that all should know the reading how we have to read. Next one is observation. So in observation, now what is the diagram here? Now we'll ask, sorry, we'll ask the some questions and we ask the some questions about heart. Okay? Anyone? Where heart is situated? In the? In the thyroid cavity. Between the lungs and thyroid cavity towards the left. How many chambers are present in a heart? What are they? Upper 2 chambers are called origin, lower 2 chambers are called ventral. Largest artery? So, which blood vessels carry oxygenated blood to all parts of a body? Loudly. Pulmonary arteries. Very good. Next. Which blood vessels carry deoxygenated blood to all parts? Collect deoxygenated blood from all parts of a body. Pulmonary veins. Okay. Pulmonary is connected to the Lungs. loudly. Lungs. Pulmonary is connected to the lungs. Next. Renal is connected to the kidneys. Renal veins are connected to the kidneys. Now, observation and understanding. Now, what is the function of kidney? Circulation and pumping of blood. Very good. Very good, students. Sara पूछे. Sara पूछे. कुछ भी. अभी मैं देखा टीचर्स है सो आप लोगों से क्वेश्चंस कर रहे थे और बाय वन सब जने आंसर दे रहे थे। मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि आप आंसर तो दिए, जैसे कि ज़ैनब दिए, इमाद दिए और सादिया दिए। ये जो आप इंग्लिश में सुना, अगर कोई उसको उर्दू में बोले तो बहुत अच्छी बात है, ताकि और जिसको इंग्लिश नहीं आती परफेक्ट लोग समझ सकना। हमारा मकसद क्या है? रीडिंग के साथ क्या है, अंडरस्टैंडिंग भी होना है ना हमारे को। तो आप तो पढ़ लिए इंग्लिश में माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, स्पीक करें आप, मगर साथ ही साथ आप समझाना भी है आपको। तो जो असल जी मकसद जो है ना हमारा, जो एग्ज़ाम लेने का, इंटरनल एग्ज़ाम लेने का, आपको रीडिंग करने आ रहा, चलो आप राइटिंग में आगे देखेंगे, लिखने आ रहा नहीं आ रहा वो मालूम हो जाता, मगर साथ ही साथ इंग्लिश में जैसा आप बात कर रहे हैं उसी तरीके से आप समझाना भी आप, तो उसको क्या है, अंडरस्टैंड होता हो। सामने वाले को क्या करना है, आपको समझाना है, किस तरीके से समझाएंगे आप। तो ये चीज़ को ख़ास तौर पे पढ़ने के साथ साथ इसको समझने की भी आप कोशिश करना। ये तो आसान है, देख के पढ़ ले सकते, अगर मैं भी कोशिश करा तो इंग्लिश पढ़ ले सकता हूँ। मेरे को समझ में नहीं आता तो उसके वास्ते मैं क्या करूँगा, उसको बोलो। हाँ, तो जब ये चीज़ को करूँगा तो मैं तब जाके आगे बढ़ सकता हूँ ना। मैं तो ख़ास तौर पे ये जो एग्ज़ाम हमारा जो हो रहा है,
रीडिंग का, राइटिंग का और अंडरस्टैंडिंग का और स्पीकिंग का, यही हमारा असल मकसद है कि हम यहाँ से जाने के बाद या फिर आगे जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं हम किस तरीके से इसको कामयाब कर सकते हैं। कामयाब कैसे होगा, ये तमाम चीज़ों को आप लेकर चलेंगे लास्ट तक। तो लास्ट तक लेके जाना आपको, एग्ज़ाम तक, आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आपके जहन में ये चीज़ बैठी हुई रहना कि मेरा मकसद क्या है, मैं यहाँ पर बहैसियत तालिब इल्म क्यों स्कूल में आया। अगर ये चीज़ को अगर असल तौर पर समझेंगे ना, आप कामयाब हो जाते। तो ये इंटरनल एग्ज़ाम रखने का मकसद ही यही। बहुत जनों को कन्फ्यूज़न अभी भी, पेरेंट्स भी परेशान है ये इंटरनल एग्ज़ाम क्यों रख रहे हैं। यही चीज़ को निकालने के लिए कि आपको रीडिंग करने आ रहा नहीं आ रहा, राइटिंग में आप परफेक्ट हो रहे नहीं हो रही, आप अंडरस्टैंड यानी समझ रहे नहीं समझ रहे, यानी आप स्पीकिंग है तो आप किस तरीके से बातों को यानी जो बात कर रहे हैं उसको इजहार कर रहे हैं, वो बात को समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को निकालना है। हमारे पास मौका है, अभी भी हमारे पास क्या है, मौका है। अभी हमारे पास 5 से 6 महीने बाकी है ताकि हमारा रिज़ल्ट जो हमारा जो मकसद है वो पूरा होना। हम कामयाब होने के वास्ते यहाँ पर आए, क्या करने आए पर, कामयाब होने आए, हम पीछे होने नहीं आए। अगर हम ये चीज़ को, ये मकसद को, ये 4 चीज़ों को अगर लास्ट तक लेके चलेंगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ हम पास हो सकते। तो लिहाजा जब आप यहाँ से जाएंगे, एग्ज़ाम लिखेंगे, तो ये चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिहाजा ये चीज़ को जहन में रखते हुए आगे बढ़ने की आप लोगों कोशिश करिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही दूसरों को सबक मिलने वाला है। अगर ये चीज़, ये टारगेट अगर रखेंगे ना आप, तो दूसरे लोग भी क्या होते हैं, आपसे सीखते हैं कि हाँ फला ये ईयर में बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए, इनका मकसद क्या था कि लोग स्पीकिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, राइटिंग में, हर वो चीज़ में क्या हुए, लोग अपने आप को परफेक्ट लेकर गए। जो मकसद है वो मकसद भी क्या हो जाता, पूरा हो जाता। ठीक है ना। तो ये चीज़ को ख़ास तौर पे याद रखिए, जहन नशीन रखिए। अगर ये चीज़ें अगर हट जाएंगे ना आप, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते फिर, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर कामयाब हो भी गए तो यहाँ से जाने के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती आपको, यानी ये तालीम से हट गए आप, उसके बाद कुछ करना चाहेंगे ना तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये चीज़ों को आगे लेके चलना है। स्कूल के साथ साथ कॉलेज में भी जाएंगे तो आपको समझना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप आगे लिख भी नहीं सकते। तो लिहाजा ये चीज़ को क्या करिए, ख़ास तौर पर जहन नशीन रखिए कि मैं किस तरीके से आगे बढ़कर कामयाब हो सकता हूँ। तो ये 4 चीज़ें आपके पास रहेंगी, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगी, तो नॉलेज तो आएंगी जाएंगी, साथ में आप सामने वाले को फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं। ये मकसद को याद रखिए। आपकी रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग, हमारा ये मकसद है कि हम यहाँ से जाएंगे तो अच्छे मार्क्स के साथ यहाँ से स्कूल से जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। Let us retake the examination in understanding and speaking. So, what do you understand with this diagram? Which diagram is this? Heart. So, heart is the pumping function and the circulatory functions. Now, Umayma from 10th class is going to explain about the working of heart in Hindi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the heart. First, superior vena cava and inferior vena cava will पहले blood लाते राइट ऑरिकल में, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता। फिर यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट रहता, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जहाँ से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता। फिर यहाँ से यहाँ पर एक वॉल्व है जो सेमी वॉल्व बोलते हैं, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, जहाँ पर लंग्स प्रेजेंट रहते, वहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाकर ऑक्सीनेटेड होता। फिर वो ब्लड यहाँ से लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, जहाँ यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल प्रेजेंट रहता, ऑक्सीनेटेड ब्लड आता। फिर यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट रहता, बाइकस्पिड वॉल्व, जिसके थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता। फिर यहाँ से ब्लड डायरेक्ट आयोटा में जाता, आयोटा से ब्लड फिर दूसरे ऑर्गन्स को ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी आउट हो जाता। थैंक यू। So students, we are concluded about this heart by some questions. My question is how we have to keep our heart healthy in good conditions. What steps what suggestions you are going to
give to all the parents, all the other students to keep our health in a good condition, healthy. So, any suggestions from the students? For keeping our heart healthy, we need to do daily or regular exercise. Okay, good exercise. Next. healthy diet. So, we had to take a healthy diet. Very good. So, we had to take next good exercise and good health. Next. Drink lot of water. Yeah, very good. So, we had to drink a lot of water. Plenty of water we had to take. Next. Any other? Don't take stress. Yeah, very good. So we should not take any stress or strain. So this last slogan, anyone wants to give? Any one of the students who wants to give the last slogan for this? Health is wealth. Health is fit. Keep your heart good. Keep your life. Very good. Health is good and keep your heart good to live good. Thank you. Thank you, students.